guys, welcome to the Dab Hand Learners channel where you will get more lectures of the business studies on classes 11th and 12th. So in the year 2021 and 2022 there is a change in the syllabus. Like this is not the syllabus which you will get this year because there is a change given by the CBSE. Now there is a bifurcation of the term 1 syllabus and the term 2 syllabus this year, and the term 1 syllabus has also been released. So now there are 5 chapters. There are 5 chapters which you will get in term 1, from chapter number 1, nature and significance of management, to organizing. There are 5 chapters in part A. Business studies syllabus is divided into 2 categories, part A and part B. And in part A there will be 8 chapter, but for term 1 आपको 5 chapters ही prepare करने हैं. Nature and significance of management, principles of management, business environment, planning and organizing, and first chapter. First and second, third chapter will be of 16 marks as it is written here, and planning and organizing will consist of 14 marks. This is about 2021 and 2022 only. And from part B, one chapter will come in term 1 exams, marketing management. This will consist of only 10 marks. So here 16 marks, 14 marks and then 10 marks. When you add on all the numbers, you will get the 40 marks question paper, and this will all be MCQ based. So you have to be very thorough with the chapters to score marks. So this is part A of business studies. I am referring the book Poonam Gandhi, but in school if in your school there is other reference books like Subhash De, GS Alag, they are also the good books, and case studies prepare करने के लिए all these books are goods, and the content in all the books will remain the same. So prepare करने के लिए GS Alag, Poonam Gandhi and Subhash De, all the books are good. I support all the books. There is no problem in any book, including NCERT. Now we will start with the chapter number 1, nature and significance of management. Now 12th students, what is the new word that you are listening to? Management. Some say management is to manage the work, resources, but in layman's language, the management is getting things done by people effectively and efficiently. Management is getting things done by others effectively and efficiently. Now there are 2 words. जो लोग आप सोच रहे होंगे कि there are 2 words that they are listening now, effectively and efficiently, because pronunciation में दोनों ही similar लगते हैं, लेकिन इनमें भी एक difference होता है which you will do it later on. For now I am referring to the intro. So we will start from the intro section so that you can get the idea कि management होता क्या है, because simply मैं direct नहीं बता सकता अभी. So first of all we will do some intro part, then I will define both the words, effectiveness and efficiency. So the very first line, that successful organizations do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management. This is very very true कि अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उसे 5 या 10 साल पहले ओपन किया था और अब जाके मैं उसका रिज़ल्ट देखता हूँ तो वो सक्सेसफुल है, तो वो सक्सेसफुल ऐसे अपने आप तो नहीं हो गई होगी.
आई हैव पुट सम वैल्यू टू इट, जिसकी वजह से आज मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। मैंने उसमें वैल्यू डाली है, मेरी मेहनत है, सब है, ताकि वो सक्सेसफुल बने। लाइक आई हैव पुट सम इंटेंशनल प्रोसेस इन इट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस, इंटेंशनल प्रोसेस। सो इसी इंटेंशनल प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ये नहीं कह सकते कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के बिना काम हो जाए, क्योंकि हमें अपने काम को मैनेज करना है, हमें लोगों को मैनेज करना है, हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना है। देयर इज़ अ नीड ऑफ मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट यू कैन से मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को आप और भी कह सकते हो परवेजिव। Management is pervasive. In the business studies of class 12, wherever you get the word pervasive, it means universal है, ये हर organization पे applicable है। Okay? So management is essential for all organization, चाहे big हो organization या small हो organization, management की ज़रूरत तो हर organization में पड़ेगी। हालांकि मेरे targets थोड़े low हो सकते हैं। big organization में मेरे ख्याल मे बी 10,000 units I would have to make, but in small organization maybe I have to make only 100 or 500 pieces. But in दोनों में I need to manage my work, resources, people also. Okay, profitable or non-profitable, whether it's a profitable company or non-profitable company like a NPO, इसमें भी हमें काम मैनेज करना है, रिसोर्सेज मैनेज करने, बिकॉज यू हैव डन इट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11, देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ओके, टू मैनेज द वर्क, पीपल, रिसोर्सेज। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो सर्विस कंपनी हो, लाइक कंपनी जो सिर्फ सर्विस देती हो, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हो, इन सारी कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी so that individuals make their best contribution towards group objectives, ताकि इंडिविजुअल अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाए। बिकॉज यू नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव विच दे हैव टू बी फुलफिल्ड। क्योंकि लाइक आप लोग 12th क्लास में भी क्यों हो? क्योंकि आपको आगे कंटिन्यू करना है। इवन सम ऑफ यू आर थिंकिंग कि मेरे को 12th में और भी अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं ताकि मैं अच्छे कॉलेज में जा सकूं। ओके, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाउ ऑनवर्ड्स कि मेरे को 98% लाने, 90% लाने, 95% लाने। सो यू हैव मेड द ऑब्जेक्टिव फॉर योर सेल्फ कि मेरे को इस कॉलेज को टारगेट करना है, तो मेरे को इसके लिए पढ़ना है। सो टू फुलफिल आवर ग्रुप ऑब्जेक्टिव वी मेक आवर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, कि कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ूँ, कहाँ पे ट्यूशन लगाऊँ, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में हेल्प करेगी। इसलिए मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, क्योंकि हमें भी अपना काम मैनेज करना है। मैनेजमेंट इवन हम भी करते हैं, हम भी अपना काम मैनेज करते हैं कि हमारा वर्क कैसे होगा, कैसे करना है, अब कर लेता हूँ या बाद में कर लेता हूँ। सो दीज ऑल आर नीडेड इन रियल लाइफ ऑल्सो। सो वी हैव टू फुलफिल आवर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, एंड ग्रुप ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स टेक डिसीजन एज टू हु विल डू व्हाट, व्हेन दे विल डू इट, एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज़। मैनेजर्स की ये जॉब होती है, ये बेसिक जॉब होती है कि उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन क्या काम करेगा, कैसे कैसे काम होगा, और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे। लाइक रिसोर्सेज हाई क्वालिटी के होंगे, लो क्वालिटी के होंगे। सो ये सब डिसीजंस जो है वो मैनेजर्स लेते हैं। बेसिक जॉब क्या होती है मैनेजर की? इज़ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब
one by one I will discuss all these resources. Physical resources are those resources जैसे कि हम raw material production process में use करते हैं. Financial resources, funds. मेरे को अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, देन आई एम इन नीड ऑफ सम फंड्स. फाइनेंशियल रिसोर्सेज उन्हें ही कहते हैं कि मेरे को फंड्स चाहिए ताकि मैं आगे अपना टारगेट फुलफिल कर सकूं, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकूं. ह्यूमन रिसोर्सेज, मैंने रिसोर्सेज भी मंगा लिया, मेरे पास फंड्स भी है, बट काम करने के लिए मेरे पास लोग भी तो होने चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट एफिशिएंट कि मैं सारे काम खुद कर लूँगा. I am in need of human resources, I am in need of staff. So physical resources are raw materials and all, and human resources are staff, and financial resources are the funds, finance, etc. So टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो वो यही कह रहा है कि मैनेजर की बेसिक जॉब है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए इन तीनों रिसोर्सेज का. क्योंकि देखो, स्टाफ होगा, अगर वो खुश रहेगा तो वो अपने मन से काम करेगा और अच्छे से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और जल्दी अचीव होगा. फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हाँ, हम अगर हमारे बिजनेस पे आगे जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम भी आई तो हमारे पास पहले से ही साइड में कुछ पैसे रखे होंगे. क्योंकि हमारे पास अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा है, फंड ज़्यादा है, तो हम साइड में भी कुछ रिजर्व बना के रख सकते हैं. यू हैव डन इन 11th क्लास अकाउंट्स कि हम रिजर्व बना लेते हैं, जनरल रिजर्व और कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ताकि वो आगे जाके काम आए टू मीट आर फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज. एंड फिजिकल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, वो तो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते ही हैं, वो चाहिए. तो अगर इन सब का इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, यही मैनेजर की जॉब होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो. नो मैटर वॉट द ऑर्गेनाइजेशन इज और वॉट इट गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स. सो दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर. उनका चाहे गोल कुछ भी हो, चाहे वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे क्या कहते हैं, एनपीओ हो, चैरिटेबल कंपनी हो या प्रॉफिटेबल कंपनी हो. सो उनके गोल चाहे, क्योंकि अगर चैरिटेबल और एनपीओ हुआ तो फिर उनका गोल तो सोशल वेलफेयर होगा, प्रॉफिट होगा नहीं. लेकिन अगर प्रॉफिटेबल कंपनी हुई तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल. तो वो यही कह रहा है कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो और उसका गोल कुछ भी हो, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन. और वो क्या कॉमन है उन सब में, मैनेजमेंट और मैनेजर. बिकॉज इन, मैंने अभी अभी बताया, आई हैव टोल्ड यू कि इन रियल लाइफ ऑल्सो वी ऑल्सो मैनेज आर वर्क एंड रिसोर्सेज. सो ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी होती है, सो वहाँ पे तो मैनेजमेंट की नीड होगी ही. सो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स. मैनेजमेंट में बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं. अब इंटर रिलेटेड फंक्शंस का क्या मतलब है, मैनेजमेंट में बहुत सारे काम होते हैं जो सारे के सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. ऐसा नहीं कि सारे डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम कर रहे हैं. लाइक इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देर आर सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो देर आर सेवरल डिपार्टमेंट. और अगर मैं कहूँ कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना अलग काम करने लग जाए, सेल्स डिपार्टमेंट अपना अलग काम करने लग जाए, HR डिपार्टमेंट अपना अलग काम करने लग जाए, सारे डिपार्टमेंट अपना अलग अलग काम करने लग जाएंगे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट. यस. So management consists of a series of interrelated functions that are performed by all managers. For example, manager have to plan the objective of the firm, organize resources to achieve that objective. First of all, हमें तो plan ही बनाना है कि हमारा objective कितना achieve होना है. Like for 12th students, you are aiming of getting 98% in boards. So you are planning.
एंड देन ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। लाइक अब मेरे को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, अब मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पहले रिसोर्सेज भी तो इकट्ठा करने पड़ेंगे। लाइक यू विल गेट सैम्पल पेपर्स, पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो, रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज़ करनी है। सो यू आर एक्यूमुलेटिंग, यू आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज विच यू आर इन नीड ऑफ नाउ। फिर देन रिक्रूट एंड सिलेक्ट एम्प्लॉय हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव। ये तो ऑर्गेनाइजिंग के साथ ही है वैसे, कि अगर हमें एम्प्लॉयज़ हमने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया, देन वी आर इन नीड ऑफ स्टाफ ऑल्सो, क्योंकि स्टाफ के बिना तो काम हो नहीं सकता। दे आर आवर ह्यूमन रिसोर्सेज, सो हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव। फिर उन स्टाफ को खुश रखने की भी जिम्मेदारी अपनी है। वी शुड बी गिविंग डायरेक्शंस, ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे कि यू हैव डन इन 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में देर वॉज सम पॉइंट कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए और वी शुड गिव ट्रेनिंग टू हैंडीकैप पुअर डिसेबल्ड पर्सन, ये एक पॉइंट था उसमें। तो वो वही कह रहा है कि इन्हें डायरेक्शंस देनी होती है, इन्हें मोटिवेट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, ताकि वो अच्छे से काम करे। बिकॉज अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनके अंदर एफिशिएंसी नहीं होगी, तो फिर ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होने वाला। तो उन्हें मोटिवेट भी करना है टू अचीव ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और फिर लास्ट में हमें चेक करना है कि जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग सब चल रहा है या नहीं चल रहा। दिस वी ऑल वी हैव टू चेक। सो दीज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, फिर रिक्रूट करना है एम्प्लॉयज़ को, फिर उन्हें डायरेक्शन देनी है, मोटिवेट करना है, और लास्ट में चेक करना है कि कोई प्लान के चेंजेस तो नहीं है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है या नहीं। हाउएवर द टाइम स्पेंट बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शन इज़ डिफरेंट। मैनेजर एक फंक्शन में कितना टाइम लगाते हैं वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो मैनेजर टॉप लेवल पे होते हैं, लाइक जो सीईओ होते हैं, हेड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि उनका काम प्लान करना है कि हमारी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो जो उनके वर्कर्स को रिसोर्सेज चाहिए वो उन्हें ऑर्गेनाइज करके देना है। बाकी रिक्रूटमेंट का काम तो एचआर मिनिस्टर का ही होगा। एचआर मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो वो ह्यूमन रिसोर्स को तो वही रिक्रूट और सिलेक्ट करता है। ओके, सो वो तो इसमें इंगेज हो जाएगा। बाकी जो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, लाइक डायरेक्शंस देनी होती है, मोटिवेट करना होता है, और फिर लास्ट में प्लान चेक करना होता है, ये सारे काम तो मिडिल लेवल मैनेजर्स ही या लोअर लेवल मैनेजर्स ही करते हैं, क्योंकि वर्कर्स के साथ वो ही डील करते हैं ज़्यादातर। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर्स तो इतना डील नहीं करते, उनके पास वैसे ही प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। सो managers at top level spend more time in planning and organizing managers at lower level, क्योंकि managers at lower level दूसरे काम में बिजी होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं प्लान और ऑर्गेनाइजिंग के लिए। ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिग है तो उसमें तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, बिकॉज उनके लिए प्लान सेटअप करना वो भी बहुत मुश्किल है, फिर जितना रिसोर्सेज चाहिए उतनों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना। Okay, so it's a difficult task. If we see real life example, Shiv Nadar of HCL Enterprise performs all these functions. So is Nuzli Wadia of Bombay dying, Bill Gates of Microsoft, Indra Nooyi of PepsiCo and principal of your school. So मैंने कहा था कि मैनेजमेंट इवन रियल लाइफ में भी काम आती है। So जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, वो भी तो पूरा स्कूल मैनेज कर रहे होते हैं। ओके, हालांकि स्कूल एक एनपीओ है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एनपीओ हो चाहे कोई भी हो, लेकिन मैनेजमेंट किसी में भी काम, सब में काम आती है। बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंदिरा नूई ऑफ पेप्सिको। सो दीज आर एग्जाम्पल विच यू कैन राइट इन द एग्ज़ाम, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आपके आंसर की उतनी वैल्यू नहीं रहती जितना एग्जाम्पल लिखने के बाद बढ़ जाती है। ओके, नाउ सस्पेंस अब यहाँ एंड होगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स बताए थे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। सो अब आई विल डिफाइन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। जो बुक में लिखी हुई है वो तो मैंने ऐसे लेमैन्स लैंग्वेज की टर्म्स में बता दी थी कि गेटिंग थिंग्स डन बाय पीपल, बट जो एक्चुअल डेफिनेशन है यू विल गेट टू सी हेयर।
Modern concept of management. According to modern concept, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. So ये वो डेफिनेशन है विच यू हैव टू राइट इन एग्जाम कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको लोगों से काम करवाना है क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करते हुए, एक तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. बट ये दोनों होते क्या हैं, ये हमें बहुत दिक्कत दे रहा है. दिस इज़ वेरी annoying now. So we will tell you here. The concept of management insists on three terms. First is process, second is effectiveness, and third is efficiency. So first is process. Management एक process है. कैसे? How? So we will see here. Process refers to series or sequence of steps. Like I have told you here that management consists of a series of interrelated function. सीरीज बिकॉज एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन परफॉर्म होता है, फिर तीसरा फंक्शन परफॉर्म होता है. ऐसे एक सीरीज होती है जो फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं. लाइक आप भी, अब आप 12th कर रहे हो, उसके बाद आपका जब ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, इमेजिन यू गेट 98% इन 12th एज मच एज यू वांट. सो उसके बाद आपका दूसरी एक्टिविटी क्या होगी कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना, आपको उसी कोर्स में जाना है जिसमें आप चाहते थे. सो दिस इज ऑल a series of functions. Okay, so here process refers to series or sequence of steps. Management is a process. Management एक process है because it performs series of functions to get the things done. because management में series of function होते हैं कि चीज़ें डन हो. अब ये functions क्या होते हैं? प्लानिंग. पहले तो हम अपना ऑब्जेक्टिव प्लान करते हैं, फिर हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफ को बुलाते हैं, फिर स्टाफ को खुश रखने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं वरना उनसे काम नहीं हो पाएगा, उन्हें डायरेक्शंस देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं. एंड कंट्रोलिंग, वो जो मैंने लास्ट में बताया था कि प्लान के अकॉर्डिंग ही सब हो रहा है, वो चेक करना भी हमारी जिम्मेदारी है. सो ये फंक्शंस जो है वो हम आगे एक एक चैप्टर पढ़ेंगे इसके ऊपर. प्लानिंग का 1 चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग का 1 चैप्टर, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे एक एक करके सारी चीज़ें बाद में क्लियर होती जाएगी. बट अभी के लिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस इसलिए बिकॉज इसमें फंक्शंस जो होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है. ठीक, उनका एक सीक्वेंस होता है ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए. ये प्रोसेस होता है बिकॉज देयर इज़ अ सीरीज ऑफ फंक्शंस. नाउ effectiveness and efficiency. Now we will see it here. Now the suspense will end here. It is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goal. Effectiveness सीधा सीधा कहता है कि अपना जो टास्क है, अपना सही टास्क करो, एक्टिविटी कंप्लीट करो और गोल अचीव करो टाइम पे. सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद एंड रिजल्ट. वो चाहता है कि एंड रिजल्ट फटाफट हो, मतलब काम फटाफट ख़त्म हो, ऑन टाइम. बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम. वो वही कह रहा है कि गोल अचीव हो, एक्टिविटी कंप्लीट हो ऑन टाइम. उसे एंड रिजल्ट से मतलब है. चलो, इफेक्टिवनेस को तो एंड रिजल्ट से मतलब है कि फटाफट अपना काम ख़त्म गया. बट एफिशिएंसी ऐसा क्या अलग चाहती है? वी विल सी इट हेयर. इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे. वो चाहती है कि जो टास्क हो वो सही तो हो. लाइक इफेक्टिवनेस के लिए तुम सही टास्क करो, जो तुम्हें दिया है वो सही करो. लेकिन एफिशिएंसी ये कहती है कि भाई तुम सही टास्क तो कर रहे हो लेकिन उसे सही ढंग से भी करो. लाइक आई विल गिव यू द रियल लाइफ एग्जाम्पल कि व्हेन टीचर आपसे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट मांगती है, एंड दिस इज़ अ टेंडेंसी और साइकोलॉजी ऑफ एवरी चाइल्ड कि हम ड्यू डेट से एक दिन पहले ही उसे करते हैं. सो इन दिस केस, if there is a student who did the project 10 days ago and you are the one who is doing the project now when the due date is tomorrow, so क्या लगता है कि किसका प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा? ऑब्वियसली 10 days ago वाले बच्चे का, क्योंकि उसने बिल्कुल अच्छे से बनाया होगा, सही ढंग से, उसके बाद टाइम था. बट आपके पास टाइम नहीं था, कल ही ड्यू डेट है. सो आपके प्रोजेक्ट में क्या होगी? इफ़ेक्टिवनेस, क्योंकि आपने ड्यू डेट से एक दिन पहले ही बनाया है.
1 डे पहले बनाया है तो इफेक्टिवनेस होगी प्रोजेक्ट में। एंड एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी किसके प्रोजेक्ट में होगी? जो 10 डेज पहले बना चुका है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट को सही ढंग से बनाया होगा, लेकिन आपने फटाफट बना दिया। तो इसकी वजह से ये होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में फ़र्क। दैट इज़ टास्क को करना इफेक्टिवनेस, पर टास्क को सही ढंग से करना दैट इज़ एफिशिएंसी। सो इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे, दैट इज़ विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही ढंग से काम तो कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट की टर्म्स में सही ढंग को क्या कहते हैं? तो वो यही कह रहा है कि मैनेजमेंट की टर्म्स में राइट वे मतलब मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लाइक if there is a labor ABC और XYZ, ABC ने अपना 100 यूनिट्स का टारगेट विद इन 1 डे कर लिया, बट उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, उसने ओवर टाइम किया, सो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी हाई आई। ओके, उसने दूसरी प्लेस पे जाके यूनिट्स बनाई तो रेंट भी हाई आया। लेट्स से दिस इज ऑल एन एग्जाम्पल। XYZ एक नेक्स्ट पर्सन था, उसने 100 यूनिट्स बनाई बट विद इन 2 वीक्स, 14 डेज, 2 वीक्स, एंड ही मेड इट एट द सेम प्लेस। सो रेंट की कॉस्ट भी क्या, रेंट की कॉस्ट भी उतनी रही, सो दिस इज लो। इलेक्ट्रिसिटी भी लो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी लो होगी बिकॉज ही मेड इट ऑन पार्ट टाइम, नो ओवर टाइम वॉज देयर। तो अगर उसने पार्ट टाइम पे बनाया और उसने ओवर टाइम किया नहीं, ऑब्वियसली बात है वो पार्ट टाइम में ही बनाएगा, वो अपने वर्किंग आवर्स में ही बनाएगा। जब उसके पास 14 डेज़ का टाइम है, 1 डे का टाइम होता तो बात अलग होती, लेकिन है 14 डेज़ का टाइम। अब 14 डेज़ का टाइम है तो वो आराम से बनाएगा, वर्किंग आवर्स में बनाएगा। तो इसलिए XYZ वॉज efficient but ABC was effective but not efficient। और ये केस स्टडी भी आ सकती है और आती है इवन कि ABC XYZ और कोई भी नेम वो दे सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि एफिशिएंट था, इफेक्टिव था। मे बी ABC के केस में वो ये भी कह सकते थे कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो डबल हुई, वेस्टेज वॉज एट 2x। तो इस केस में वो एफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसमें वो कह देगा इवन रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन हुआ, रिसोर्स यूटिलाइज्ड ऑप्टिमली। सो हेयर ही वॉज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑल्सो, बिकॉज उसने काम भी कर दिया और सही ढंग से भी कर दिया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो एफिशिएंसी में और क्या क्या लिखा है? एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। वो वही कह रहा है कि कम से कम रिसोर्सेज यूज हो, लाइक कम से कम कॉस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट सच एज मनी, मटीरियल्स, इक्विपमेंट, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट। वो ये कहना चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले और कॉस्ट, रिसोर्सेज ये सब कम हो। अगर आपने ऐसा किया तो एफिशिएंट होगा। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट अगर कम होगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा, और मैनेजमेंट यही चाहती है कि रिसोर्सेज का भी एफिशिएंटली यूज़ हो। बिकॉज अगर आप प्रोजेक्ट से एक दिन पहले बनाओ, ड्यू डेट से प्रोजेक्ट एक दिन पहले बनाओगे, तो ऑफकोर्स जल्दबाजी में अपना भी सामान ख़राब होता है। ओके, सो एफिशिएंट बनना है, इफेक्टिव नहीं बनना। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, मीनिंग इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस क्या कहती है? टास्क टाइम पे होना चाहिए, कॉस्ट नहीं। कॉस्ट से उन इफेक्टिवनेस को फ़र्क नहीं पड़ता। एफिशिएंसी को ये कॉस्ट से फ़र्क पड़ता है, और वो चाहती है कि टास्क तो टाइम पे हो लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट। सो कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, कॉस्ट कम तो बेनिफिट ज़्यादा, लेस रिसोर्सेज तो मोर बेनिफिट। ऑब्जेक्टिव टू अचीव एंड रिजल्ट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो, कॉस्ट कम बेनिफिट ज़्यादा। ओके, एंड मेन कंसिडरेशन इन इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट टास्क, जो टास्क बोला है उसे कर दो अच्छे तरीके से। एफिशिएंसी में डूइंग द टास्क इन राइट वे, जो टास्क दिया है उसे सही ढंग से करना है, जबकि इफेक्टिवनेस में था कि जो टास्क है वो कर दो टाइम पर। ओके, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कंक्लूजन। सो दिस इज ऑल अ समरी जो आपको बताएगी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फ़र्क है, रिलेशन क्या है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एज बीइंग इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क। इफेक्टिवनेस तो क्या चाहते हैं, टास्क कंप्लीट कर दो टाइम पे, बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वो ये कह रहा है कि इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी माना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस तो ये चाहती है कि टास्क कंप्लीट हो जाए टाइम पर, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि टास्क कंप्लीट ही हो, ये ज़रूरी है कि टास्क जो है वो कंप्लीट तो हो रहा है लेकिन करेक्टली हो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये एफिशिएंसी कहती है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, वन विदाउट अदर इज़ ऑफ नो यूज़। वो ये कह रहा है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक सिक्के के दो मुंह हैं और एक के बिना दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं। लाइक आप एफिशिएंट हो लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक आपने प्रोजेक्ट तो बड़ा अच्छा बनाया लेकिन 10 दिन बाद दिया, क्या फ़ायदा, -10 होकर वापस आएंगे। सो देर इज़ नो यूज़। ओके, और इफ़ेक्टिव हो बट एफिशिएंट नहीं हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज प्रोजेक्ट अगर गंदा गंदा सा बना दिया तो भी टीचर मार्क्स नहीं देने वाली, वी ऑल नो डैट। ओके, सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अगर दोनों होगी एम्प्लॉयज़ में या ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, तो हायर प्रॉफिट की पूरी पूरी चांसेस है और प्रॉस्पेरिटी के भी। और अगर फेलियर है ऑर्गेनाइजेशन का तो इनएफिशिएंसी ज़रूर होगी या इनइफेक्टिवनेस होगी। सो आई होप you must be clear about both efficiency and effectiveness. So this is all we have done till now. Concept of management, we have insisted on 3 terms. हमने पहले process पढ़ा because इसमें management में series of function involve होते हैं किसी भी काम को कराने के लिए। effectiveness, task कर दो complete पर time पे। एफिशिएंसी, टास्क तो कंप्लीट करना है लेकिन उसे सही ढंग से भी करना है, और सही ढंग मतलब कॉस्ट कम और बेनिफिट ज़्यादा और रिसोर्सेज भी ऑप्टिमली यूज़ होने चाहिए। कीवर्ड्स, मैनेजमेंट अ प्रोसेस इज टू अचीव गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। गोल को अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क और अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम, टाइम पे कंप्लीट करना है टास्क, एंड एफिशिएंटली completing the task or achieving the goal with minimum cost or optimum utilization of resources in cost effective manner। टास्क तो कंप्लीट करना है बट कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज़्यादा और रिसोर्सेज भी ऑप्टिमली यूज़ होने चाहिए। लाइक टास्क तो कंप्लीट करो लेकिन सही ढंग से। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स एंड कंटेंट सो प्लीज़ like and subscribe the channel and please hit the bell icon so that you will get notified every time when I upload the videos on YouTube. And if you have any queries and doubt, do comment. Thank you so much.